You know, usually my idea is to do walk the talk conversations, but today I tagged along with Agarola Mehdi for the full day. I met him at 10 a.m. in the morning and I was with him, what it's already 5:15. जो JNK का कॉन्स्टिट्यूशन होता था ना, इट इज सेम लाइक इंशाल्लाह फिर से होगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही है. वर यू इनवाइटेड? First time in last 23 years I was not invited. You represent the aspiration, the dignity of Kashmiris. I swear upon God. I'm हम encouraged. सब आपके साथ हैं. We are with you, sir. I'm in Budgam today and I have with me Mr. Aga Rahullah. I mean, he doesn't need an introduction. He's a name in itself. He's a MP Srinagar, a 3-time MLA from Budgam and a very well-known figure in Kashmir Valley. I came here to his house today and I want to spend a whole day with Aga Sahab today. Thank you, Aga Sahab, for giving me time. I've been waiting for 3 months for this. You're Thanks a welcome. lot. You're welcome. We are looking forward to having a good conversation with you. Perfect, sir. So, where are we heading today? Where do we go from here? We'll go to Saura and then we'll go to Ganderbal. We'll meet people in Saura as well as in Ganderbal. Talk with them, speak about the issues and have an interaction. Perfect. So it's already 11 o'clock. I guess we should leave. आपको भी टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में क्योंकि I guess 1-1.5 घंटे का सफर है. बहुत ट्रैफिक जैम भी है आगे. We will talk in the car. चलते चलते. Sure. I love cars, by the way. So I had I still have it. I have a Polo GT TSI. It's an automatic but a DSG gearbox. Okay. इसका DSG gearbox खराब हो गया. Then? पड़ी हुई है एक जगह. Then I bought a Kia Seltos. Okay. But I bought a manual one. Right. So because you were recently in Germany as well. You know how it is. हाँ, German cars. Yeah. मैंने देखा है जैसे एक शिया क्लिरिक है आगा सईद हादी. अच्छा. एंड द अटायर जो वो पहनते हैं वो ब्लैक कलर का वो आई गेस दस्तार वाइट और ब्लैक. आई मीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है वैसा वाला ना अटायर. मेरे को वो बहुत ऑरा लगता है उसमें. आप वैसे चीज नहीं पहनते? मुझे खुद बचपन में बिकॉज आई सॉ माय ग्रैंडफादर आई सॉ माय एल्डर्स इन दैट अटायर. मुझे खुद फैसिनेट करता था वो अटायर. सो more than the attire you need substance, you need knowledge and wisdom and the understanding. Attire is not as important, unfortunately. We get driven by the attire. Attire के पीछे जो substance होना चाहिए, जो knowledge होनी चाहिए, जो wisdom होना चाहिए, that's lacking. So my earlier generations, they were fascinating in every sense, in their appearance and in their substance. That is lacking now. वो हमने बचपन से सुना है ना, नॉलेज इज पावर. बिल्कुल बिल्कुल. पहले फिर भी होता था, हम किताबें पढ़ते थे. इवन आई हैव स्टॉप्ड रीडिंग बुक्स और न्यूज़पेपर्स. आई डोंट एक्चुअली रीड. अब तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है. सोशल मीडिया पे ही कंज्यूम करते हैं जो भी करना होता है. जो भी सोशल मीडिया में एक बबल है ना. You live, a person lives in that bubble. कि he sees a 30-second clip and उसको context नहीं पता होता. बिल्कुल. And then सब कुछ इधर उधर हो जाता है कि आपने एक context में कोई चीज बोला तो वो दूसरी चीज से पोर्ट्रे करेंगे. बिल्कुल. And फिर ये IT सेल ट्रोल्स आज तो फिर क्रेजी हो जाता है कि क्या ट्विस्ट देंगे आपके कमेंट को. फोकस डिफिशिएंसी अब ये प्रॉब्लम है. 1 मिनट में आपको चाहिए वीडियो, 30 सेकंड का आपको वीडियो चाहिए, उसी में आप यू विल मेक ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ 30 सेकंड्स ऑफ वीडियो. दैट्स नॉट करेक्ट. And that is one of the reasons I wanted to meet you. अच्छा. For a longer duration so that I can have a talk. हम बाय देखते हैं चीजें. It's good to have a conversation because अब conversations खत्म हो गई है. बिल्कुल. सारी दुनिया में, I won't say just कश्मीर. कश्मीर तो एक छोटी सी जगह है. बिल्कुल. सब अपने फोन के साथ है, सब उन चीजों के साथ है. अच्छी बात होती नहीं है. पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था, so I'm not that old, at 35 right now. जब मैं छोटा था तो गैदरिंग्स होती थी घर पे, रिश्तेदार मोहल्लों में गैदरिंग्स होती थी. अभी अब सारे सबर्ब्स में रहने गए हैं, अब ऐसी चीजें हैं नहीं.
I guess by टाइम time नहीं उतना होगा नहीं। होता रिलेटिव्स के लिए, नेबर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं होता, वो सोशल गैदरिंग्स नहीं होती है। हाँ, शादियों पे भी अगर एक दूसरे के यहाँ जाते, पहले अगर आपको याद हो तो रुकते थे 1-2 दिन के हाँ। लिए, अब आज उसके बाद भाग जाते हैं सारे। वापस। इसी तरह से डिफरेंट ओकेजन्स, वही 1-2 घंटा टॉलरेट कर पाते हैं सब, उसके बाद सभी अपने अपने रास्ते, बिजी फॉर नथिंग। ऐसा कुछ प्रोडक्टिव हो नहीं रहा है कि हम कहें कि दुनिया बदल गई है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम हो रहा है, तो इसीलिए टाइम नहीं है। मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव हो रहा But है, बिजी सभी है। I'll give you an anecdote. हम्म, मैं रोज सुबह 9-10 बजे ऑफिस टाइम पे ऑफिस जाता हूँ, शाम को 5-6 बजे आता हूँ, और आजकल दिन ना बहुत छोटे हैं। जी। सो आई लिव ऑन द हाईवे एंड मेरा ऑफिस 5-6 किलोमीटर दूर है, बट वहाँ पे एक सनत नगर का फ्लाईओवर बन रहा है, तो वहाँ पे सब फंस जाते हैं। हम्म, एंड एवरीबडी इज इन अ हरी एंड नोबडी रीचेस ऑन टाइम, कि सबको निकलना है, बिल्कुल, डबल बिल्कुल। लेन ट्रिपल लेन कर दी, बिल्कुल। वहां से एक आ रहा है, और अब कोई गली में से निकल रहा है ना, बिल्कुल। उसको जगह नहीं छोड़ रहे, बेचारा एक गाड़ी वाला छोड़ दो उसको जगह, वो भी निकल जाएगा। एवरीबडी इज इन अ हरी बट नोबडी रीचेस ऑन टाइम। बिल्कुल। सिक्स सेंस को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पता नहीं हम किस चीज़ में बिजी है, किस चीज़ के रश में है। हाँ, रोड डिसिप्लिन हमें नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें लैग करती है हमें। मे बी वी हैव बीन थ्रू टर्मोइल फॉर द लास्ट 2-3-4 decades ऑलमोस्ट, तो but this happens all over India, only India, हाँ Bangladesh, बिल्कुल, but maybe Pakistan and all, वहाँ पे भी होता होगा ऐसे। I would expect my society, my immediate society to do better on Do this better, account correct. as well. ठीक है, छोटी सड़क से अगर आप निकल रहे हो, आपको देखना कि बड़ी सड़क से चलने वाला पहले उसको पास होना है, बिकॉज इज Correct. स्पीड Speed is इज more फास्टर देन यू, तो आपको रुकना है, यू हैव टू वॉच लेफ्ट एंड राइट, पहले उनको पास होना है, फिर आपको जाना है उस रोड पे। इस तरह का वी डोंट, पेडेस्ट्रियन हैज अ राइट। कभी क्या होता है, पूरे रोड्स बंद कर देते हैं, बिल्कुल। वीआईपी मूवमेंट होती है कुछ, बिल्कुल सारे रोड्स बंद कर, फिर भी आपके लिए नहीं होता है। नहीं होता है, ना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बुरा लगता है, मतलब I'm just a common कश्मीरी। किसी को भी लग सकता है, मतलब आधे घंटे तक रोड बंद होता है, ठीक है 1-2 मिनट के लिए कर दे समझ सकता है, 1-2 क्रॉसिंग्स के लिए कर दे समझ सकता है इंसान। एलजी जब मूव करता है तो पूरी सिटी को मुझे लगता है 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बंद किया जाता है, सारी क्रॉसिंग्स को बंद किया जाता है। किसी को स्कूल जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को अपने बिजनेस पे जाना है, किसी को अपने काम पे जाना है, किसी को फ्लाइट पकड़नी है, या कुछ ना हो, नॉर्मली वो अपने किसी जगह पे जा रहा हो, तो उनको अजियत होती है, इट्स अ वायलेशन ऑफ देयर राइट, और उनके साथ हरासमेंट भी है। ठीक है, अगर आपको करना है 1-2 बीट्स चल सकता है, 1-2 क्रॉसिंग्स इन एडवांस चल सकता है, मगर इतना ज़्यादा क्या कि आप सिटी बंद करते हो 20 मिनट, आधा घंटा पहले, एंड फिर लोगों के साथ वो हरासमेंट होती है, इट्स नॉट डन। एंड हमारी सड़कें भी है ना छोटी सी, आप जैसे अभी जर्मनी गए थे, आपने देखी होंगी वहाँ सड़कें, मतलब आई हैव अ ड्रीम टू ड्राइव ऑन ऑटोबान, क्योंकि नो स्पीड लिमिट है, कि मैं भी उतना स्पीड चल पाऊँ, इट्स अ ड्रीम, मे बी वन डे। राइट। वहाँ के रोड्स आपने देखो, हॉकिंग नहीं होती है, नहीं वो होती है, होता इंडिया से बाहर मैंने कहीं पे हॉकिंग नहीं देखी है। जर्मनी तो आप छोड़ ही दीजिए, कहीं और पे नहीं होती है हॉकिंग। रोड्स अच्छे हैं, मतलब वही 4-6 लेन रोड्स ऑटो बान है उनके, सिटी रोड्स वेल मेंटेन्ड, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन है। रोड्स कहीं पे इतने भी छोटे मैंने देखे, ये जो हमारा रोड है इतना ही छोटा रोड मैंने देखा, बट वेल मेंटेन्ड, और हाँ रोड डिसिप्लिन देखा, लेन क्रॉस नहीं करेंगे, अगर दूसरा साइड खाली भी हो, कोई लेन क्रॉस करके वहाँ अपनी लेन में चलेंगे, गाड़ी और गाड़ी के बीच में डिस्टेंस रहेगा। अगर किसी को लेफ्ट से जाना है तो वो लेफ्ट लेन पकड़ेगा, अगर किसी को राइट से जाना है वो लेफ्ट लेन नहीं पकड़ेगा, पीछे का ट्रैफिक बंद नहीं करेगा। सो दैट रोड डिसिप्लिन इज
also a part of how I that guess functions. जो हमारा RTO प्रोसेस होता है उसमें फिर ये चीजें इनकलकेट होनी चाहिए क्योंकि होना चाहिए. दैट्स व्हाई लाइसेंस इन वेस्टर्न कंट्रीज, या आपने दुबई में भी देखा होगा इसी तरह का, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट. उसके लिए आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्लासेस लेने पड़ते हैं. यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि क्लासेस वगैरह होते हैं. ट्रायल लेते हैं आपसे कहीं पे, वहाँ पे कहीं H पे. बनाना होता है या S बनाना हाँ, होता है, वही आगे ट्रायल्स और लेते हैं. पीछे। क्लासेस नहीं होते हैं ना, आपको Classes। महीने भर नहीं लेते क्लासेस में. आपको रोड साइंस, रोड डिसिप्लिन नहीं पढ़ाते हैं, नहीं सिखाते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है. अगर वो आपने वायलेट किया तो आपकी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी, या इस तरह का नहीं होना. सिचुएशंस नहीं पढ़ाए जाते हैं, डिसिप्लिन नहीं पढ़ाया जाता है. यहाँ पे सिर्फ वही ट्रायल्स, इसको हमेशा तक बोर्ड फिर के ना हमेशा व्यवस्था यहाँ पर कुन के ना But बस देखिए, that's it. ये मेरे को आइडिया था. जैसे हमने हमेशा बोला कि स्मार्ट सिटी, हाँ. श्रीनगर हाँ. पर से इज अ स्मार्ट सिटी, राइट? वेरी So, स्मार्ट. स्मार्टनेस इज दिस, राइट? कि आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, आपके रूल्स रेगुलेशंस वैसे होने चाहिए. लेकिन यहाँ वही है ना कि सी अगेन इन व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ये होता है कि हमने रोड नए बना दिए, हमने लाइटें चिपका दी ताकि शाम को ग्लो होती है लाइटें, बिकॉज दैट इज व्हाट आई पर्सनली सी हियर. मेरे हिसाब से मैं डेवलपमेंट देखता हूँ कि अगर ऐसे लेट्स से 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, हाउ वी ओवरकम दैट. वंस वी ओवरकम दैट हम ऑब्वियसली सारा कुछ सॉर्ट आउट करेंगे. रोड्स वगैरह बने हुए हैं, अब ऑलरेडी कहीं पे बना हुआ है, उसको फेसलिफ्ट दे रहे हो. फायदा आई डोंट नो कि क्या आता है, क्योंकि कैसे चलता है क्या नहीं चलता. आप गवर्नमेंट में रहे हो, आपको मे भी पता होगा ये सब चीजें ज्यादा. बट फॉर मी डेवलपमेंट आर डिफरेंट थिंग्स. इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिंग रोड्स, क्रिएटिंग अर्बनाइजेशन, हर कहीं पे कंक्रीट स्ट्रक्चर बना. डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स. ये हमें 2019 के बाद यहाँ पे जो लाइटें वगैरह लगाई गई है बताने के लिए कि चीज़ें चेंज हो गई है, कश्मीर अचानक से डेवलप हो गया, तो डेवलपमेंट का पता चला क्या है कि वही पोल्स के अराउंड वो लाइटें वगैरह लगाई गई, स्ट्रिप्स लगाई गई, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं. नहीं, इट्स नॉट दैट. It's a combination of many things. It's the betterment of the society in multiple ways. Infrastructure is one important part of that package. Infrastructure सिर्फ road नहीं है, आपका health infrastructure, education infrastructure, industrial infrastructure, आपका social services के दूसरे जो infrastructure है, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिन पे आपको इंडिकेटर्स चेक करने कि आप कहाँ पे थे, आपकी डिमांड क्या है इस वक्त सोसाइटी में, और आप कितना केटर कर पाते हो उस डिमांड को, एंड हाउ वेल. क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. पानी आपके घर में आता है, दैट्स नॉट द डेवलपमेंट. किस तरह का पानी आता है, और इसी तरह से आपका किस तरह का पानी आता है, दैट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. इसी तरह से आपके यहाँ हॉस्टल है, सिर्फ हॉस्टल होना डेवलपमेंट नहीं है, तो किस तरह का आपकी सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज है उस इंस्टीट्यूशन से. और डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल. आपको फॉर एग्जांपल आपके कितने डॉक्टर्स होने चाहिए सोसाइटी में आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, आपके कितने टीचर्स होने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से. आई गेस द रेशियो इज़ 1:30 टीचर्स के लिए, इसी तरह से डॉक्टर्स के लिए, इसी तरह से हर किसी सेक्टर में. तो क्वालिटी, क्वांटिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटरमेंट, ये सब इंडिकेटर्स जोड़ के फिर आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है. हाँ, डेवलपमेंट पे आ जाए. ये ब्रिज 15 ये आपकी सरकार में भी बन रहा होता है जब आप सीमेंट ब्रिज बिल्कुल परसों खुला है कुछ दिन पहले, इतने सालों के It बाद. took 15 years. 15 years. बिल्कुल, too much of time. Work culture, बिल्कुल. Work culture, again, one more important question in our society. गवर्नमेंट भी ऐसी है क्योंकि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द सोसाइटी, वही होगा, वही रिफ्लेक्ट होगा जो सोसाइटी में भी है. वर्क कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है डेडिकेशन के साथ अपने काम को. मैंने अभी एक रीसेंट आर्टिकल कहीं पे पढ़ा था, तो वहाँ पे एक पारसी कॉन्ट्रैक्टर था, उसने पुणे में कोई रोड बनाई थी जी 1970s 80s में. अभी भी वो वैसी है. उसके बाद उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जी. क्योंकि फिर कैसे समझते बाकी उसने नुकसान कर दिया. नुकसान कर दिया. We have to grow beyond this. क्या करें? तो हमें I mean, see, personally, I've been seeing you
बहुत टाइम से 10-15 साल से आई गेस, जब से थोड़ा जहन आता है ना, जी 20 साल की उम्र में थोड़ा जहन आता है, देन यू हैव दैट फिगर इन योर माइंड. I look at 3-4 politicians from Kashmir who maybe can be big national leaders. ओके उसमें मैं हमेशा बोलता था एक आगा रूल, एक उमर अब्दुल्ला, अच्छा एक महबूबा मुफ्ती. ओके If I had to send 3 people to the parliament from Jammu Kashmir, ओके from Kashmir, Jammu का मैं बात नहीं कर सकता, हाँ I would have chosen these 3 to represent me there इन द पार्लियामेंट in the parliament. ओके क्या कर सकते हैं, उनमें से तो 2 हार गए. हार जीत होती रहती है. हाँ, हार जीत इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. बिल्कुल Some win, some lose. बिल्कुल बिल्कुल Autumn से ना nostalgia आता है इंसान. बिल्कुल And there's this term SAD, seasonal something depression, which happens from November to हाँ. January, जब sun नहीं होता है, बिल्कुल foggy gloomy, foggy होता है. बिल्कुल. But I like winters provided ये You snowfall have हो. electricity. वो तो है ही होना Electricity चाहिए. बहुत अगर नहीं है तो फिर हाँ snowfall हो तो winters for me is the best season. अगर snowfall ना हो तो the worst season. True. बहुत ठंड होती है. So आप जा रहे हो अभी पार्लियामेंट सेशन में 2 दिन बाद. जी क्या डिबेट, मतलब you will be given, I know, 2 minutes. अगर वो भी मिले. बिल्कुल. तो देखिए सब्जेक्ट्स ऑफ द डिबेट वो जो है वो फिक्स करना गवर्नमेंट का काम है. किस सब्जेक्ट पे किस दिन डिस्कशन होगा, डिबेट होगा. तो अगर रिसेंट हालात पे वहाँ पे डिस्कशन हुआ, ट्राई टू स्पीक ऑन दैट अगर मुझे टाइम मिला. जो ब्लास्ट दिल्ली में ब्लास्ट के बाद वो That was unfortunate. वेरी That was so अनफॉर्चुनेट sad. वेरी अनफॉर्चुनेट. तो उस टेररिस्ट एक्ट के बाद जो इनोसेंट कश्मीरीज के साथ जो बाहर हो रहा है उस पर बात करने की कोशिश करूँगा. ओवरऑल जो अब कश्मीरियों को वो हमेशा से इनकी आदत ही है, मगर इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद ज़्यादा ही वो पेंट करने की कोशिश करते हैं कि हर कोई टेररिस्ट है, हर कोई कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट है. तो उसके ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश करूँगा. गवर्नमेंट कम ना समझे, कम से कम नेशन अवेयर हो कि हकीकत क्या है एंड व्हाट वी ऑल आर गोइंग थ्रू. उससे बात करने की कोशिश करूँगा. दिस इज़ इमीडिएट प्रायोरिटी. उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे वहाँ पे बात करनी है, प्रोवाइडेड कि मुझे टाइम मिले. ये हरासमेंट ख़त्म हो, ईज़ ऑफ लाइफ हो. कोई वर्दी वाला, चाहे वो पुलिस का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, सड़कों पे ना हो और सताए ना और हरास ना करे. अगर सड़कों पे हो भी हरास ना कर पाए. सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एज समवन सेड इन अ डेमोक्रेसी. यहाँ पे पुलिस वाले को लगता है कि वो सिटीजन से आम सिटीजन से बहुत बड़ा है, वो उसका बॉस है. पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को लगता है कि वो सताते हैं. वो तो जब इसी तरह से जी हुकूमत में थे तब से है ना. ये जैसे PSA कब आया, आई गेस शेख अब्दुल्ला के टाइम से, एंड इट वाज यूज्ड ऑन टिम्बर स्मगलर्स और समथिंग, एंड विद टाइम इट वाज पॉलिटिसाइज्ड एंड यूज्ड ऑन पॉलिटिकल प्रिजनर्स. एंड फिर हर किसी पर जी फिर ये वो हो गया, नॉर्मलाइज हो गया. जी दिस इज समथिंग. बिल्कुल बिल्कुल. आई रिमेंबर हमने अब सफ़ा के रिमूवल के लिए काम किया जब हम गवर्नमेंट में था. बट एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इफ यू रिमेंबर, जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और हमारी लास्ट वाली गवर्नमेंट थी, तो इस गवर्नमेंट ने तब कोशिश की कि सफ़ा हटाया जाए. पी चिदम्बरम वाज ऑन दी सेम पेज. इनिशिएशन वाज मेड इन दिस रिगार्ड. चीज़ें इनिशिएट की गई थी. फिर AK एंटनी ने जो डिफेंस मिनिस्टर था उसको रोका था. एंड द क्वेश्चन कि ये बात कि 10 साल पहले होता था, दैट मीन्स कि अभी भी होना है. यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर देन यस्टरडे. अगर आज आप समझते हैं कि और सर्कमस्टांसेस भी 10 साल पहले जैसी नहीं है. एवरीवन क्लेम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो क्लेम्स कि अब चीज़ें बेहतर हो चुकी है, पीस हैज़ रिटर्न्ड. तो अगर ये सब कुछ है तो peace, the benefits of the peace should be then transferred to the people. Correct. तो अब आज की situation you cannot compare it with the situations at that time. तो अगर चीज़ें अगर बेहतर हो चुकी है and हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर है,
सोसाइटी itself अंडरस्टैंड्स बेटर, तो वो चीज़ें ट्रांसलेट होनी चाहिए, ट्रांसफ़र होनी चाहिए टू द सोसाइटी एज वेल। तो इसके बेनिफिट्स भी ट्रांसफ़र होने चाहिए टू द सोसाइटी एज वेल। तो आज के ज़माने में एज यू सेड, अगर कोई किसी को चांस मिलता है या कोई अगर जैसे तो क्यों आपने नहीं कर पूछा, पाते उमर अब्दुल्ला ये चीजें कि अभी यूटी में नहीं हो पाएगा? यूटी में नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने कहा ना कि पहली लड़ाई हमारी वही थी कि हम अपने राइट्स की वापसी के लिए लड़ते। प्रॉब्लम ये है कि ये वो लड़ाई ही नहीं लड़ रहे। तो उनकी आज कुछ मीटिंग है, बाय द वे, मैंने सुना। मैंने सुबह सुना कि किसी ने तो बोला मेरे को सुबह सुबह। मैंने सुना कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग है विच आई एम अ पार्ट ऑफ। मुझे आप भी जा रहे हैं? आप इनवाइट किया ही नहीं गया। क्या? By the way, you didn't lose your seat, जो आपकी bastion है, बडगाम MLA. You lost the seat. You didn't campaign. You had went to Germany. बिल्कुल। तो लोगों ने वहाँ पे वर्डिक्ट दिया जो उनको देना था। नाराजगी जताई उन्होंने जो उनको जतानी थी। हाँ, लोग किसी पार्टी ने वहाँ पे सीट जीती नहीं, दैट वाज, आप ऐसे बोल सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो सीट हारी। हाँ, correct. It was a seat to lose for नेशनल Conference. कॉन्फ्रेंस। And National Conference ने, क्योंकि मैं खुद तो उस वक्त बडगाम नहीं आया, but I remember 40 की 40 MLA were campaigning there. एवरीवन, है ना? द होल गवर्नमेंट। And then once you came back, वहाँ पे एक हजूम सा जमा हो गया था। कुछ तो लिखा था पोस्टर पे, कौन आगा, or something like that. राइट। And I guess that was in compliment to जो डिप्टी सीएम ने बोला था, कौन आगा। नॉट इन कम्प्लीमेंट बट इन In रिस्पॉन्स। response, sorry. इन रिस्पॉन्स टू। In response to that. जैसे डिप्टी सीएम की वही क्लिप वायरल हो गई, कौन आगा। आई डोंट नो वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। अब जब तक मैं वो पूरा क्लिप नहीं देखूंगा ना, मैं अपना वो दिमाग नहीं बना सकता हूँ कि क्यों, क्या, कैसे। ठीक, राइट। तो इसलिए आपको पूरा देखना हाँ, चाहिए पूरा था। देखना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी मैं आपसे कुछ बात करूंगा, मेरे को अगर लगा कि 30 सेकंड की क्लिप है, मुझे एज अ कंटेंट, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ डिजिटल मार्केटर। I have been doing digital marketing for 15 years, so I know each and everything. Clickbait क्या है, ये क्या है, वो क्या है. We know how to sell all this. मैं भी 30 सेकंड का एक क्लिप निकाल के आपका कोई controversial statement डाल दूँ, वो जो वायरल हो जाएगा। वही डिसऑनेस्टी होती है ना आजकल, ये दैट्स नॉट करेक्ट। Clickbait के लिए तो लोग चीजें करते हैं। बिल्कुल। My idea is to document, not just Kashmir, but I am seeing it India as a whole. I want to speak, जैसे आप कहते हैं, there are really like-minded people that you see in the parliament जो आपसे second करते हैं आपके opinion को या कुछ। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी बात करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या पता मेरे को कल को अगर मोदी जी के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला, मैं तो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाऊंगा। ठीक है। आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। है ना? मोदी जी की ब्रांडिंग मेरे को सही लगती है। The people who take care of his branding, crazy. मेरे को अगर इंटर्न भी वो ले लेंगे ना, I don't mind, क्योंकि समझ गया मैं in last 10-11 years that he has been the Prime Minister of India, and the way he has branded himself, there's nobody like him in India that way. मार्केटिंग अच्छी होती है उनके पास। That's what branding is. बाकी हाँ बिल्कुल, बाकी तो है नहीं कुछ, उसी पे चलते हैं। कहाँ 150 करोड़ लोग, मोदी जी कहाँ देखेंगे हर किसी को, क्या या कोई भी। इसीलिए वो वापस वहां पे आएगी बात कि ऑटोनॉमी या जो 370 था कि रीजनल पार्टी है, कि ये देख रहे हैं कि रीजनल पार्टी को ज्यादा पता होता है कि क्या चाहिए, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू अ नेशनल पार्टी। एंड दैट्स समथिंग दे नीड टू रियलाइज कि जितना भी गवर्नेंस लोकलाइज्ड हो उतना बेहतर है। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी इज बेटर अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज्ड हो, पॉलिसी मेकिंग लोकलाइज्ड हो, बिकॉज लोकल एस्पिरेशंस, लोकल अंडरस्टैंडिंग वही बेहतर डिलीवर कर सकती है
इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। They- और they can कश्मीर make good decisions. बिल्कुल ऐसा ही होता था। आप पैरामीटर्स पे देख लीजिए, JNK डिड बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। हाँ, आज तो हम पूरा नीचे है आज तो हम नीचे है। हेल्थ इंडिकेटर पे आप देख लीजिए, वो अमंग द फर्स्ट 5 or 10 स्टेट्स। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट में देख लीजिए, वो द लेस अनएम्प्लॉयड स्टेट। आज वी आर द मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट। एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, वी वर अमंग द फर्स्ट 10 स्टेट्स, एंड ऑन फ्यू इंडिकेटर्स वी वर अमंग द फर्स्ट 5। तो पॉवर्टी के इस इंडिकेटर पे देख लीजिए, और अब हम पीछे ही चले जा रहे हैं। वी वर अमंग द बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे पॉवर्टी थी नहीं। हाँ, करेक्ट, तो वो भी है। अब आप देख लीजिए, दैट इज आल्सो ग्रोइंग। मैं वही कह रहा, हम सोशलिस्ट टाइप के थे। बिल्कुल। हमें, मेरी इससे पहले भी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता था, सोशलिस्ट टाइप्स। बिल्कुल तो वैसा लेट्स से हम यूएस को देखते हैं ना, सो देयर इज अ फेडरल स्ट्रक्चर देयर, एंड जैसे आपने भी पहले बात की हुई है, व्हेन यू नो वी जब अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, जब उमर साहब सीएम बने थे, और वहां से न्यूयॉर्क में क्या हुआ, ममदानी मेयर बन गए, एंड ममदानी सेड समथिंग काइंड ऑफ बिकेम अ रेबेलियन था वो उनका ट्रम्प के खिलाफ। So you wanted when we elected the CM, you wanted that kind of a thing, I guess. आपने अच्छी एग्जांपल दी यूएस की। आई हैव सेड इट मैनी टाइम्स इन डिफेंस ऑफ 370। आपके लिए ठीक हुआ था, मुल्क के लिए ठीक नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हुआ था, और हमारे लिए ठीक नहीं हुआ था, और हम आपके मर्जी के गुलाम नहीं है। सुनने की हिम्मत भी रखा करो। We need not only for Jammu and Kashmir, for the other states as well, we need a federal India, जहाँ पे स्टेट्स मोर पावरफुल हो, मोर प्रोटेक्टेड हो, और सेंटर उतना एग्रेस ना कर सके या ट्रांसग्रेस ना कर सके स्टेट के राइट्स पे, पॉलिसीज़ पे, आइडेंटिटीज़ पे। स्टेट्स के पास वो प्रोटेक्शन और वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो खुद से डिसाइड करें मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स पे। तो यही 370 हमारे लिए यही था, वही अरेंजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ Kind of an कि autonomy. हाँ बिल्कुल, 2-3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, 2-4 सब्जेक्ट्स को छोड़ के हम खुद लेजिस्लेट करेंगे, हम खुद यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग करेंगे, while being the part of India. सौ साल पुराने होंगे ये ट्रीज, हाँ These जनाब, chinars. बिल्कुल। ब्यूटीफुल। नए हम लगाते नहीं हैं। नए हम लगाते नहीं हैं, हम तो काटते हैं बस, हाँ, हमें लगाना नहीं। Plundered, you know, because you are from Badgaon, so I don't know if you have gone to Tosmadan and all these places. मैं Massacre है एक वहाँ बार पे। गया, वहाँ पे कटा हुआ है सारा। I guess वो देवदार है वो। हाँ बिल्कुल, I मैसेज don't- हाँ, जो वो PSA लगाना था ना, वो उनको लगाना था। वो जो timber smugglers थे, उन्हीं के लिए तो बना था PSA। weaponizing a small thing. That's what politics does. For me, conversations matter. बिल्कुल कुछ pre-written नहीं, let's talk, let's see how it goes. बिल्कुल, And again, स्पॉन्टेनियस हो, नेचुरल। we are in this world to gain knowledge. हाँ You know more about things than me. So I am a simple, naive Kashmiri who wants to learn few things here and there. For example, the Constitution. I have no idea what's written in the Constitution because I never studied it. Whether it's the जो erstwhile J&K state का Constitution होता था या जो हमारा Indian Constitution है. I have no idea what's written in it. What कौन सा article क्या होता है, मेरे right क्या है, मेरे राइट क्या नहीं है। वही प्रॉब्लम है ना, पता होना चाहिए। Exactly. We live in a system, you like it or not, ये सिस्टम है, you live with it. तो what are your rights in it, कहाँ पे आपके राइट्स का रेस्पेक्ट किया जाता है, कहाँ पे आपके राइट्स एनक्रोच किए जाते हैं, you should know about it. तो उसी की बुनियाद पे you can shape your life. True. एंड अगर आपको फाइट बैक की ज़रूरत है, यू शुड नो कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स, और किन चीज़ों को लेके आपको लड़ना है, किन चीज़ों के ज़रिए आपको लड़ना है, आप कैसे अचीव कर सकते हैं, एंड व्हाट वी एस्पायर टू बी। जब हमें वादा दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मुल्क का,
तो हमें किस बुनियाद पे, किन वादों पे वो मुल्क दिखाया गया। अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो वैल्यूज़ आज भी फंक्शनल है, नहीं है? अगर नहीं है तो वी हैव टू चैलेंज, अगर है तो वी हैव टू मेक देम बेटर। तो जब तक आपको पता ना हो, हाउ वुड यू आई मीन नेविगेट थ्रू दीज चैलेंजेस एंड शेप योर लाइफ? बिलाखिर हम एक सिस्टम में रहते हैं ना, इट इज़ द रियलिटी। तो इस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने हुकूक के लिए कैसे। एजुकेशन सिस्टम ओनली, या इट शुड बी, इट्स अ गुड आइडिया, क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। करेक्ट, यू शुड नो योर राइट्स, क्या सही है क्या गलत है, देन ओनली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए क्लासेस में, राइट एज से। जो जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन होता था ना, इट इज सेम लाइक, इंशाल्लाह फिर से होगा जी, वो इट इज सेम लाइक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट सेम। कुछ लॉज है जो हमने खुद से, विच वर आई मीन इन विच वी वर पायनियर्स, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर के हवाले से बहुत सारे, राइट टू प्रॉपर्टी, लैंड जो मिला था लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं इन विच वी वर पायनियर्स। आरटीआई, वी वर पायनियर्स, ये हमने पहले किया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज, पब्लिक सर्विस गारंटी, ये हमने किया था। अकाउंटेबिलिटी कमीशन, लोकायुक्त बिल पे वो जो अन्ना हज़ारे मूवमेंट चली थी ना थ्रू आउट इंडिया, अच्छा, नो वन नोज, हमने पहले वो लॉ यहाँ पे कंसीव भी किया था, बनाया था। हाँ, तो मतलब हम बहुत आगे थे, हम बहुत आगे थे, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत आगे थे। सो इन एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन सेम था, मगर लॉज अपने अपने हिसाब से कुछ हमारे यहाँ पे, एंड नॉट इन द नेगेटिव सेंस, इन द पॉजिटिव सेंस, दे वर बेटर देन द लॉज इन द constitution of the rest of India. So we had a very good constitution. We had means to legislate for ourselves. So हम better legislate कर पाते थे. And federal structure था. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So if anything is passed by the Parliament of India or maybe anything, it goes through a process of J&K Legislative Assembly and then it's implemented. Or हाँ, like अगर J&K Legislative Assembly ने उसे अप्रूव किया, वो भी प्रोसेस नहीं था, वो यहाँ पे लागू ही नहीं होता था। अगर उस तरह का लॉ या वो लॉ J&K Assembly ने लाया तो यहाँ पे लागू होगा, अगर नहीं लाया तो लागू नहीं होगा। वैसे युतु योत वना अच्छा न्यूक सोरे, अच्छा न्यूक बचस रोजगार, अच्छा न्यूक खरोतल जमीन, अच्छा न्यूक सरमा, अच्छा न्यूक दीनदारी हज आज़ादी, दीनी मामलातन हज आज़ादी, अच्छा वथुन, अच्छा लड़न, अच्छा न्यूक वोट कोत्र लुकन निश योय वाद दित। Hypothetically speaking, if you were the CM of the UT of Jammu and Kashmir and you were not the MP, because you talk about a lot of things that the present J&K government is not doing, the chief minister or different ministers, what would have been your priority list, like maybe 2 to 3 things? UT, I would want to be MLA of the UT, forget about being CM. और मैंने ये पहले ही कहा है, I will not legitimize this discredited status of our assembly. Correct. By participating But in the what assembly. if- Hypothetically. Hypothetically speaking. One thing, let me answer it this way. UT का जो चीफ मिनिस्टर है या हो सकता है या होगा या होता, मेरी नज़र में उसके लिए प्रायोरिटी 1 ये होनी चाहिए कि जो हमारा स्टेटस हमसे छीना गया है उसकी रेस्टोरेशन के लिए एक डेमोक्रेटिक, एक इंस्टीट्यूशनल फाइट बैक करे। उसके लिए पब्लिक ओपिनियन तो पहले ही मोबिलाइज हुई है J&K में, क्योंकि आपको वोट ही उसी के लिए मिला। जो 2019 में जो डिसीजंस हुए उसके रिवर्सल के लिए वोट मिला, तो कश्मीर में पहले ही आपकी पब्लिक ओपिनियन है, मैंडेट है। अब आपको पूरी इंडिया में लाइक माइंडेड पार्टीज़ और एलाइज देखने थे, उनके साथ एंगेज करना था। प्रायोरिटी शुड हैव बीन कि ठीक है, अगर 370 पे एज पर से बीजेपी बात करने नहीं देती है, और बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ है इंडिया में, साउथ से लेके ईस्ट तक और नॉर्थ में भी। आई सी दिस एस्पिरेशन इन पंजाब एज वेल। एक फेडरल इंडिया की जो डिमांड है, एस्पिरेशन है,
उसके लिए लॉबिंग करनी थी। अगर आप 370 से ज़्यादा, कश्मीर से ज़्यादा एक ओपिनियन बना पाए, एक डिमांड बना पाए पूरे मुल्क में कि ये मुल्क ये नेचुरली इट्स फिट फॉर इट डिमांड्स अ फेडरल स्ट्रक्चर, तो हर एक स्टेट को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और दे शुड हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी, देयर लैंड, देयर पॉलिसी। वो ऑटोनॉमी के लिए, उस फेडरल इंडिया के लिए आपको या उस चीफ मिनिस्टर को लॉबिंग करनी चाहिए, ओपिनियन बनानी चाहिए, एक फोर्स गैदर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी लाइक माइंडेड पार्टीज़ है, विच आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर द लास्ट more than 1 year and few months in the parliament, I see there are many parties which are a very strong force in Indian politics, जो फेडरल इंडिया के लिए सीरियस है। तो उनके साथ सिर्फ एंगेज करने की ज़रूरत है, उनके साथ कैनवसिंग करने की ज़रूरत है कि हाउ डू आई सी द रिटर्न ऑफ द प्रोटेक्शंस दैट वी already had, how do I see a chance for the return of those protections। हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते थे, एंड फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरल इंडिया में वो कॉमन ग्राउंड है। विदाउट टॉकिंग अबाउट JNK particularly, or only talking about JNK, you could lobby and gather force who could talk about those states who demand for federal India। तो ये प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए थी। यूटी में रह के आप रोज़ कहते कि चूंकि यूटी है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये फाइट, ये वोट ही नहीं मिला था कि आप यूटी का काम करें, ये वोट मिला था आप यूटी के स्टेटस को चेंज करवाए, और हमारी जो लॉ, जितनी भी ऑटोनॉमी अब बची कुची थी, जो प्रोटेक्शंस थी, उसके रिटर्न के लिए आप पूरे हिंदुस्तान में मोबिलाइजेशन करें। और वो डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन, वो डेमोक्रेटिक लॉबिंग और फाइट बैक इस चीफ मिनिस्टर को करनी थी, या यूटी के चीफ मिनिस्टर को करनी थी, जिससे आपको वो इख्तियारात वापस मिलते, जिसके ज़रिए आप फिर आप वो डिलीवर कर पाते, या जो लोगों की एस्पिरेशन है, वो डिग्निटी से जुड़ी हुई जो एस्पिरेशन है, प्रोटेक्शन से जुड़ी जो एस्पिरेशन है, वो वापस मिल जाती। Okay, इस पे देखो, मैं when I talk about India, there are I guess 28 states, Right. some union UTs, 8 Right. 10 UTs I guess now. मैंने पूरा इंडिया, so I have traveled from Jammu and Kashmir to Karnataka by road. राइट, मैंने देखा है डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ना। इंडिया ऐसे ही बना ना कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, डाइवर्स कल्चर्स। इनफैक्ट अगर हम करेंसी नोट देखते हैं तो उसमें 20-25 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। बिल्कुल। सो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वैसे समझा सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, वो तो फिर बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। ओके, ये तो हो गई है। व्हाट वुड हैव बीन द नंबर 2 thing that you would do as a CM? Let's talk about maybe reservation policy. You have been talking about this for a long Reservation, time. I talk about it because it is something which is immediately hurting the generations, और वो generations जो इस वक्त काम कर रही है, या पढ़ रही है, या काम करने की कोशिश कर रही है to contribute to the society। तो जो हमारी इस वक्त की जनरेशन है, it's hurting them, it's hurting their opportunities, it's hurting their future। तो कम से कम ये इस पे कुछ करना तो आपके हाथ में है ना, despite being what would have you done in this case, in this scenario? Because see, I don't know much about I would reservation have, policy. हाँ, I would have first of all called all the stakeholders, जो हमारी कैटेगरी से पॉपुलेशन है, उनके स्टेक होल्डर्स और ओपन मेरिट के स्टेक होल्डर्स। आई वुड हैव ओपन द डिस्कशन। जो ये 6 महीने मांगे गए ना, आई थॉट कि वो 6 महीने उसी डिस्कोर्स के लिए, उसी डिस्कशन के लिए मांगा गया कि एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाए। एट द एंड ऑफ द डे उनको ये बात बताने की ज़रूरत है कि हम रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि दोज हु हैव बीन ट्रेडिशनली चैलेंज, जिनने मुश्किलात देखे हैं, उन सेक्शंस को जो है वो रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो हम रिजर्वेशन के साथ हैं, मगर ये जब रिजर्वेशन एक कैप से बाहर चला जाता है, हमें आबादी का तनासुब देखना है, प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जिन कैटेगरीज की हम बात करते हैं उनका प्रोपोर्शन देखना है पॉपुलेशन में क्या है। अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से है तो ठीक है, हमें कोई हर्ज नहीं है। अगर ये उस प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं है, अगर ओपन मेरिट के साथ कोई ज्यादती होती है, तो वी नीड टू फाइंड वेज टू फिक्स इट, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, एंड टेकिंग एवरीवन ऑन बोर्ड।
हैविंग ओपन डिस्कशंस, उसके बाद हम एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंच सकते थे, एंड देयर आर वेज एंड मीन्स टू डू दिस. Then why don't they do it? आई फेल टू अंडरस्टैंड. इट लुक्स लाइक ये आपसे ये ईगो का इशू बना दिया गया, इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू, द ग्रेविटी ऑफ द इशू, इसको ज़्यादा अपने ईगो के बारे में बना दिया गया, एंड दैट इज़ वेरी डिसहर्टनिंग एंड डिस्करेजिंग. It's sad, no? It is, I Things mean, that and can be done should be done, basically. एंड इट हर्ट्स कि जब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन और पूरी जनरेशन का करियर स्टेक पे लगाते हैं सिर्फ अपने ईगो की वजह से. And trust me, the kind of mandate National Conference got last year, I never thought that they would get a landslide victory. They don't need anybody else's support in these. बिल्कुल बिल्कुल. I mean, they can pass all these things. And as I don't know Marullah, I have never met him, but he's a very sane guy. I mean, he should probably do something about it. ये सिंपल सी बात है जिसको समझने के लिए आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाने की correct. ज़रूरत नहीं है. तो एंड दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड मैनी ऑफ माई कोलीग्स, फ्यू ऑफ माई कोलीग्स इन फैक्ट आफ्टर द इलेक्शन. मैंने कहा कि ये मैंडेट बहुत सालों के बाद मिला है, डेकेड्स के बाद मिला है. इट्स नॉट अ मैंडेट, इट्स अ ट्रस्ट. इसको वैल्यू करो, इस ट्रस्ट की कदर करो, इस एतमाद की कदर करो, और अगर कदर करोगे तो अगली बार इससे भी ज़्यादा मिलेगा. अगर नहीं करोगे ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस. मैंने because I come from the streets, मैं घूम रहा होता हूँ सड़कों पे, so we talk to people ऐसे क्या चल रहा है कैसे. तो मैंने किसी भी पूछा कि नेशनल को वोट क्यों दिया, लोगों ने पचमलट थ्रो इस बीजेपी यमन PDPS वोट तो होकर BJP से अलायत इस तरह on and those महबूबा मुफ्ती the terms that she has used in the past. बिल्कुल. वो चीज़ है क्योंकि people have short term memory, but याद रहता है कि 5 साल में क्या हुआ. And then National Conference got a landslide victory, and I thought कि ठीक है, बढ़िया है, हो गया. So I have personally, मेरे को कोई इशू नहीं है गवर्नमेंट से, क्योंकि मेरे को कोई काम नहीं होता है गवर्नमेंट से. But again, जब हम ऑनलाइन आते हैं, whether it's Twitter और Facebook और anything, वहाँ पे देखते हैं कि रिजर्वेशन का कुछ तो इशू है. ठीक है, जिनका इशू है उनका विचारों का सॉर्ट कर दो. आपको अगर जॉब पोस्ट आ रहे हैं 300, उसमें से आई गेस 30% ही ओपन मेरिट के लिए है या कुछ है. सो टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपको 40 से 45 सीटें मिली थी, नेक्स्ट टाइम आपको 55 से 60 मिलेंगी, क्योंकि आपने अपना वोटर बेस बनाया. बिल्कुल सही. ये वही जनरेशन है जो आपको वोट डालेगी, क्योंकि आपने ये काम किया. नाउ व्हाई, हाउ, व्हेन, वो तो आपकी वर्किंग कमेटी जो सरकार चलाते हैं, मे बी उनको ज्यादा पता होगा. एंड मे बी वन ऑफ द डिफरेंस जो आपके और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी है एज अ पार्टी, वो आई गेस इसी पे स्टार्ट हुआ था कि दे, आई डोंट नो इफ वी कॉल इट अ एलिगेशन, बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट, but you were with the students as per you, because what I've heard from the last podcast, you went there for students that इनका केस सॉल्व कर दो. सो फिर वही ईगो पे बात आती है, क्या आती है, बट मर्की वाटर्स. एंड इन डेमोक्रेसी अगर लोग आपके पास आते हैं, दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, दे डिमांड, यू शुड वैल्यू इट. ये ऑटोक्रेसी है, अथॉरिटेरियनिज्म है कि कोई आया, उनने धरना लगाया तो मैं अपने ईगो पे लूँगा. इन डेमोक्रेसी ये आपके हक में है, बिकॉज दे रीच आउट टू यू. अगर आप उनको सुनोगे एंड यू सॉल्व देयर इशू, यू अर्न देम, यू विन ओवर देम, अर्न देयर रिस्पेक्ट. बिल्कुल. सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द डे. एंड आपको एक जगह मिसकोट इससे पहले भी किया था टूरिज्म पे, आपको रिजर्वेशन पे भी कहीं से बीच में कोई वोट ले आते हैं कि वो ये सब चीज़ें. राइट नाउ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि आप नहीं? अभी उन्होंने मुझे निकाला नहीं है. अच्छा. मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ. तो फिर भी जो दूसरे MP साहब हैं उनसे तो आपकी बात होती होगी? हाँ, कभी होती रहती है, उनसे भी बात होती रहती है. He has his opinions, उनसे आप कभी उनको बात तो कीजिए. फिर भी रिजर्वेशन का बहुत कुछ पता होगा ना, बिकॉज ही
मैं इतना ही उनको कहूँगा बहुत बड़ी कि फॉलोइंग है। ही ऑल्सो सेड कि हाँ स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, वो अभी तक बात भी नहीं हुई है स्टेक होल्डर्स के साथ। लोगों को ना यही पिंच होते हैं, फिर यही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, आप बोलते हैं ना कि ठीक है 5 साल में हम ये चीजें कर लेंगे, या पीपल डोंट रिमेम्बर ऑल दिस, पीपल रिमेम्बर कि जब टाइम था आपने वो चीज नहीं की। फॉर एग्जांपल ये हमेशा बोलते हैं, हम आप तो उसी पार्टी के हैं, कि हम जी जब पावर में आएंगे हम पीएसए उठाएंगे। मैं 2008 से सुन रहा हूँ, कभी नहीं उठाऊँ फॉर एग्जांपल। फिर वही पीएसए आप ही पे लगा, है ना, आपकी पार्टी के बहुत, इनफैक्ट जो हमारे सीएम है उन पे भी लगा था। आई डोंट नो अबाउट यू, आप पे लगा था कि नहीं, बट वही वेपनाइज करके आप ही पे लगा। सो थिंग्स शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। वही बात है That's ना। how you want trust. बिल्कुल, आपने कहा मैं पीएसए हटाऊंगा, अभी आप यूटी की गवर्नमेंट में हैं, आप नहीं हटा सकते। आप नहीं हटा सकते। व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी? आप वो अथॉरिटी, वो राइट्स वापस ले आइए जिसके जरिए आप फिर पीएसए हटा सके, तो आप Correct. वो लड़ाई लड़ो ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो जब बोला ना कि पहले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो गए, उसके बाद हम स्टेट रेस्टोर कर देंगे, वो भी तो नहीं होगा। ये तो सब जुडिस है ही ना। यही तो मैं बात करता हूँ ना कि आप इस वक्त उस एस्टेब्लिशमेंट से के मुकाबले में खड़े हैं जो आपको हर लेवल पे डिसएम्पावर करना चाहता है, और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए आपको कोई हेल्प नहीं है। एक ही रास्ता है कि आप अपनी पॉलिटिकल फाइट लड़ें और अपने कॉज को जिंदा रखें। आपको फोर्स गैदर करना पड़ेगा, आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बात होती है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, उसके रिएक्शन में आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा डेमोक्रेटिकली ओपिनियन को। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ, जब देंगे तो देंगे। और मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा, दैट्स अबाउट स्टेटहुड, वो हमारी लड़ाई नहीं है। स्टेटहुड माइनस द प्रोटेक्शंस दैट वी हैड is a betrayal to the people of Jammu and Kashmir, and that's a degradation. As a state, you can then maybe pass a resolution कि ऐसे maybe वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वो रेजोल्यूशन आप छोड़िए, रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन। आपको लोगों ने रेजोल्यूशन दिया 2024 के इलेक्शन में, यू हैड टू कन्वर्ट इट, दिस ओपिनियन, दिस मैंडेट, दिस वोट इनटू एक्चुअल पॉलिटिकल फाइट। इसके बाद आपको क्या रेजोल्यूशन चाहिए? 2024 में लोगों ने वोट देके ये कहा कि वी आर नॉट इन एग्रीमेंट विद द डिसीजंस ऑफ अगस्त 5। देखो चलो अब हम बोलते हैं ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल फाइट है जो ये वाली लड़नी, एक छोटी छोटी बात है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, कितना पावर ये है। आप अभी भी बात कर रहे थे कि 200 यूनिट बोला था फ्री देंगे, या फिर दिया नहीं। व्हाई इज इट सो हार्ड? I don't आई know. गेस पीडीडी ये वगैरह जेके पीडीसीएल जो भी है, ये चीजें तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होगी ना, या प्रेजेंट यूटी गवर्नमेंट। बिल्कुल। अभी पहले क्यों होता था हमें पावर सस्ता, आज क्यों है हमें पावर महंगा? ये देखिए, अगर पावर महंगा है भी, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर आपको इलेक्शन के दौरान ये बताना था कि पावर मैनेजमेंट के लिए हमें हमारी पॉलिसी ये होगी, फिर उस पर अमल करना था। माई प्रॉब्लम इज कि आप इलेक्शन के दौरान ये कहते हैं कि हम यूनिट्स फ्री दे देंगे, हम मीटर्स हटा देंगे, नहीं होता। फिर इलेक्शन के बाद आप उसका उल्टा करते हैं। यू हैव टू एजुकेट पीपल व्हाइल यू कंटेस्ट द इलेक्शंस, उस दौरान आपको बोलना है, सो दैट दे टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। आप इलेक्शन के दौरान एक बात और इलेक्शन के बाद उसका उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पावर सेक्टर में, सो यू हैव टू एजुकेट पीपल, और उस वक्त इलेक्शन के दौरान यही कहना था कि दिस इज हाउ वी वांट टू गो अबाउट इट। आप उल्टा नहीं कर सकते। आप इलेक्शन में लोगों को बताएं कि हम इतने यूनिट्स फ्री दे देंगे, उसके बाद उसका उल्टा आप बताएं। माई प्रॉब्लम इज देयर। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, कुछ लोग पावर के लिए करते हैं, to be in power, to have the seat, और कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, then you don't fulfill your promise, and then in 5 years people show you कि हम कहाँ से, because
नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा पहले भी 40-50 सीटें लाती थी, फिर वेंट टू आई गेस 15-16 इन 2014 96 में 2/3 मेजोरिटी थी, फिर 28 पे आए, फिर 15 पे आए। हाँ बिल्कुल। and now back to 35 Back to because people have shown given you their trust, but एंड दे शुड अंडरस्टैंड द रीजन 15 से वापस 40 पे क्यों आए, 42 पे क्यों आए, लोगों ने क्यों वो वोट दिया। आज तो एनालिटिक्स का ज़माना है, डेटा का ज़माना है, अब तो सब कुछ आपको समझ आएगा, मतलब आपको कुछ ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर से एआई ने तो तावन ही किया है सारा कुछ। ऑनेस्टली मुझे अपने आप कभी ना रिडंडेंट लगता है कि मैं जो काम करता था वो AI मैं एआई करके दे रहा है, मैं बस प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि ठीक है and 2 years 3 years down the line a lot of people will go redundant and there will be scarcity of jobs and stuff, बहुतों को निकालेंगे क्योंकि अगर आपने अपस्किल नहीं किया चीज़ों में कुछ नहीं हो पाएगा। Okay, are you interested in technology? yes है। Oh, AI is crazy. It is it is crazy like anything that comes new to the people. एक टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी क्रेजी होती, एक टाइम पे इंटरनेट itself was crazy thing, एक टाइम। I sometimes wonder who made this car wheel. हाँ बिल्कुल। तो then it's how you adaptation से ही आपका फिर आगे का कोर्स। हमें कश्मीर में एडॉप्शन नहीं होता ना चीज़ों का, हम तो फिर भी 10 साल पीछे चल जाते हैं। वही प्रॉब्लम है ना, वही जब हमारे ऐसी चीजें आती हैं उतना कुछ खास नहीं है अगर देखा जाए। जब हम कश्मीर से निकलते हैं, क्योंकि मैं तो कश्मीर में ही पढ़ा है, एंड देन वी मीट समबडी हु हैज स्टडीड इन यूएस, उनका तो अलग ही हिसाब किताब होता है, अलग चीज़ें पढ़ते हैं वो। एंड मैं हमेशा सोचता हूँ कि व्हाई नॉट, मतलब हम भी एक छोटा सा कश्मीर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, we can make things here and provide it to the world. I'll give you an example of Israel, Tel Aviv. Tel Aviv is the hub of tech. Digital marketing, coding, AI, वो चीज़, ये चीज़, everything is done from where? Tel Aviv and everything. क्योंकि उन्होंने वैसा अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाया है, they are able to sell it to the world. We people, why can't we do that? हम एजुकेशन में इतना पीछे क्यों रह रहे हैं हमेशा लोगों से? ठीक है, हमारे यहाँ से IAS लोग करते हैं, हमारे यहाँ से MBBS लोग करते हैं, लेकिन it's not the end of the world. There are way too many things that you can enter and flourish and sell it to the world. It's as simple as that. जनरली मैं एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा उसमें भी यू कैन रिफ्लेक्ट। आई सी सर्टेन पैरेलल्स इन स्विट्ज़रलैंड एंड इन कश्मीर। फिर मैं कभी सोचता हूँ कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। कुछ चीज़ें हैं, दे आर नॉट अबाउट क्वांटिटी, दे आर अबाउट क्वालिटी। स्विट्ज़रलैंड उन चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए माना जाता है, वॉचेस, दूसरी चीज़ें एक्सेट्रा। वो क्वांटिटी के बारे में नहीं है, वो क्वालिटी के बारे में है। अच्छा, फिर उसकी जोग्राफी, वेदर दैट हैज़ अ कंट्रीब्यूशन कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है वो चीज़। कश्मीर के साथ वैसे ही था, हैंडीक्राफ्ट्स आप ले लीजिए, इट वाज नॉट अबाउट क्वांटिटी, It was a niche. absolutely, it was about quality, it was a brand in itself. कश्मीर यूनिवर्सिटी आए हम फाइनली, पूरा दिन आपके साथ स्पेंड किया, बहुत जगह हम गए आज, बहुत होपलेसनेस लगती है लोगों में हर किसी चीज़ पे। अभी हम यहाँ भी आए, यहाँ भी आपके साथ लोगों की बात हुई, अगेन देयर इज होपलेसनेस, जॉब्स नहीं है, बाहर वाले जॉब्स ले रहे हैं, ये है वो है, क्या कर सकते हैं फाइनली हम? यही, अगर आपने सुबह से फॉलो किया हो और आपके साथ जो बात हुई, लोगों के साथ जो बात हुई, दिस इज़ द क्रक्स। ये होपलेसनेस किस वजह से है? दे फील कि उनके जॉब्स चले गए हैं, उनके राइट्स चले गए हैं। पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, जो कि पहले यहाँ पे नहीं था, गेट मोर अपॉर्चुनिटी दैन द पीपल फ्रॉम इनसाइड द स्टेट। तो यही मैं बात कर रहा था ना, दिस इज़ द चैलेंज वी हैव टू फाइट, और जिसके खिलाफ हमें लड़ना है। और यही हमारे साथ हुआ, द एग्रेशन दैट वाज डन ऑन August 5, 2019। वो पॉलिटिकल एग्रेशन हवा में नहीं था, कागज पे नहीं था, उसके असरात थे जो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोग समझते हैं, मगर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उतनी सीरियस नहीं है। उसके असरात, उसके रिपरकशंस और उसके रिजल्ट्स ऐसे ही है जैसे अभी आपने सुना।
they lost the career, they lost the opportunity, hopelessness है, opportunity अब equal नहीं है, we are turned into second class citizen. हम गांधरबल में गए, वहाँ पे आपने सुना कि हमारी ज़मीनें महफूज नहीं, यूनिवर्सिटी में आए, यहाँ पे आपने सुना कि हमारी जॉब्स महफूज नहीं है. सो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है या जो जिन चीज़ों पे सोसाइटी चलती है वो सब चैलेंज हुआ और हम से सब कुछ छीना गया. तो हमारी प्रायोरिटी इस वक्त सब कुछ छोड़ के प्रायोरिटी इस वक्त यही होनी चाहिए कि टू रिक्लेम आवर राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, जिसके ज़रिए हम न सिर्फ आज की जनरेशन बचा सके बल्कि आने वाली जनरेशन भी बचा सके. Tell me top 3 politicians that you think are the future of India. आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया के कौन ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो फ्यूचर को शेप कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं विच आई थिंक के इमीडिएट फ्यूचर में और प्रेजेंट में इंडिया को उनकी ज़रूरत है. राहुल गांधी इज़ वन अमंग देम. तो उसके अपनी कमज़ोरियाँ हो सकती है, कहीं पे फ्लॉज भी हो सकते हैं, बट वन थिंग इज़ कि आइडियोलॉजिकली ही इज़ वेरी क्लियर. एक साइड से आपकी राइट विंग पॉलिटिक्स चल रही है जहाँ पे दूसरों को सेकंड क्लास बनाना है, डिसएनफ्रेंचाइज करना है, कम्युनल पॉलिटिक्स है या रिलीजन के बुनियाद पे कैटेगराइज किया जाता है लोगों को भी और राइट्स को भी. दूसरी तरफ से राहुल गांधी ही स्टैंड्स फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी एंड प्लूरलिस्टिक इंडिया, जहाँ पे इक्वल राइट्स होने चाहिए. द फाउंडेशंस जिस पे ये हिंदुस्तान बनाया गया था, वैल्यूज दैट वर प्रॉमिस्ड व्हेन इंडिया वाज फाउंडेड, एंड दिस मैन ओपनली एंड without being apologetic stands for those values. हाँ, strategically overall structure जो पार्टी का है, कांग्रेस का है, या कांग्रेस का जो अप्रोच जो है वो मुझे लगता है कभी अक्सर वक्त वो ग्रे एरिया में, दे आर नॉट क्लियर. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल में और कांग्रेस में बहुत फर्क है. वन इज दैट द अदर पॉलिटिशियन दैट आई थिंक इंडिया को प्रेजेंटली भी ज़रूरत है, फ्यूचर में भी उस तरह के पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है. ममता बनर्जी, who stands for the identity of her state, the protections, rights of her state. जो जिस डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, हर स्टेट की अपनी पहचान है, अपनी अलग आइडेंटिटी है, पहचान है, उनके राइट्स है, तो उसी हिसाब से वो ऑपरेट करना चाहते हैं. कश्मीर, जम्मू कश्मीर उसी चैलेंज को फेस कर रहा है. तो हमारे लिए एक मिसाल है ममता बनर्जी कि सेंटर के साथ वो अनअपोलोजेटिकली लड़ रही है, कोई कमज़ोर नहीं पड़ रही है अपनी लड़ाई. वो एक बार वो मार्च लेके निकल पड़ी थी. I saw that. तो वो बहाने नहीं बनाती है कि मुझे सेंटर के साथ इस वजह से नहीं लड़ना है, उस वजह से नहीं लड़ना है, मुझे लड़ाई छोड़नी चाहिए. शी स्टैंड्स फॉर हर प्रिंसिपल्स और द एजेंडा उसकी पार्टी का जो है, अनअपोलोजेटिकली एंड वेरी स्ट्रांगली, ब्रेवली. तो इस तरह के पॉलिटिशियन जो है वो. एंड नंबर 3 ऐसे इमीडिएट कोई एग्जांपल है नहीं मेरे. कलेक्टिव सेट ऑफ पीपल जो इस तरह के हैं, जिनको देख के आप पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा देखते हैं. इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड पुटिंग पॉइंट्स अक्रॉस, कपिल सिब्बल इज a good politician in terms of communication and putting. मेरे को इन पॉलिटिशियंस पे याद है, अभी कन्हैया ने ज्वाइन किया हुआ है कांग्रेस, राइट? कन्हैया comes from as a student leader from JNU. And now we are in Kashmir. I don't know यहाँ unions होती है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, students union या student politics होती है. I don't know, maybe you know that better. banned है but होनी चाहिए. I believe students union होनी चाहिए. क्योंकि students को represent करने के लिए कौन है? अभी हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में है. हाँ, correct. That's why this यहाँ पे students union होनी चाहिए, students politics होनी चाहिए. वहीं से आपके future politicians निकलेंगे, leaders निकलेंगे, those who will shape the course of the state. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फ्री होना चाहिए. और लोकली है कोई ऐसे पॉलिटिशियंस व्हिच यू थिंक मे बी इन नेक्स्ट 5 years 10 years? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई नज़र नहीं आता. जब नज़र आएगा तो मैं खुद भी उनको देखना चाहूँगा, पकड़ना चाहूँगा, उनको अपने साथ लेना चाहूँगा. वो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बबर शेर, वो बड़े सोशल मीडिया पे छाए होते हैं, या एक है वो? ये हमारी बदकिस्मती है. हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतना नीचे गिराया गया है. एक पॉलिटिकल स्टैंडर्ड जो होता था इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, जो स्टैंडर्ड होता था वो अब गिर रहा है. तो ये बदकिस्मती है हमारी. हमें अपने डिस्कोर्स को भी
उठाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को उठाना पड़ेगा। और इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेन, Yeah, I've been with you since 10 a.m. in the morning. एंड आज अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, आज वर्किंग कम्युनिटी की आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही है. वर यू इनवाइटेड? फर्स्ट टाइम इन लास्ट 23 years I was not invited. I'm Oh, a wow. permanent member of the working committee. और एंड you're a senior leader now, yeah? और मुझे इनविटेशन नहीं दिया गया था आज। So you're still with national conference और अभी तक निकाला नहीं उन्होंने, तो देखते क्या होता है। आप निकालेगा वेट कर. कोई नहीं, मैं भी वेट कर रहा हूँ अपने वक्त का। ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह। Do you want 2-3 more minutes? हो गया? Or no? हाँ? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना, मैं लाइट तेरे को समझ आएगी ना? लाइट है. अच्छा, मेरे 2-3 more minutes सर, हम फिर ऐसे गोल करके आएंगे वापस, या यहाँ से वापस फिर आप गाड़ी में चढ़ेंगे और आप निकलेंगे. अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह Every आपको day सलामत। आपकी discussion होती है. बहुत बहुत You शुक्रिया। represent the aspiration, the dignity of Kashmiris. I swear upon God. I'm हम encouraged. सब आपके साथ हैं. Amen. We are with you, sir. Thank you We so are much. with you. I just was walking there. We are going in car. I stood there. मैं बोला कभी it's my first time in life I'm meeting some poor. I'm encouraged. We love you, sir. We love you. Thank you so much. Thank you. देखिए सर, ये बच्चों का प्यार हमें जितने भी आज, क्योंकि आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे जितने भी लोग मैं सुबह से देख रहा हूँ आपसे मिल रहे हैं, जो ना यूथ है, दे आर कमिंग टू यू, दे लव इट दैट यू आर वॉइसिंग देयर ओपिनियन, कि आप ब्लंटली इतनी सब चीज़ें बोल रहे हैं. इतना प्रेशर भी होगा ऊपर से, मे बी आपको अब पार्टी भी नहीं सपोर्ट करती, बट स्टिल यू आर वेरी ब्लंट एंड स्पीकिंग टू द फेस एंड बोलते हैं. एंड उमर साहब को वोट भी इसीलिए पड़ा था, क्यों आप यू वर द स्टार कैंपेनर इन द इलेक्शन, आई गेस. राइट. बात ये है कि हमें ट्रस्ट ही, भरोसा ही इसी चीज़ के लिए मिला ना, कि आप बेबाक होके अपनी बात करें, हमारी बात करें, इस रियासत की बात करें. द यंगस्टर हु केम, ही फील्स फॉर द डिग्निटी दैट वी हैव लॉस्ट, ही फील्स फॉर द प्रोटेक्शंस दैट वी हैड, ही फील्स फॉर द राइट्स. ये बेसिक है. ये बात भी हम नहीं कर सकते, इतना भी हम नहीं कर सकते. नहीं है तो इतनी क्या कमज़ोरी है हम में कि हम ये भी नहीं कर सकते. एंड दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स. आपकी पूरी एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया है. ट्रू. इस रियासत के लोगों की एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया है. इट्स इन क्वेश्चन. सो इन क्राइसिस में, इस चैलेंज टाइम में भी अगर आप यू डू नॉट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, या यू डू नॉट डू बेसिक्स, तो आप है क्यों फिर सियासत में, जो भी इन चीज़ों से पीछे हटते हैं. और आप खुद देखते हैं, अगर कोई दिस इज दे फील कि आई रिफ्लेक्ट their sentiment, I reflect Correct. what they feel to say, what they feel Correct. should be done. तो ये सबके लिए चश्मकुशा होना चाहिए कि इतना तो अगर आप करेंगे, लोगों से आपको न सिर्फ ट्रस्ट मिलेगा बल्कि मोहब्बत मिलेगी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी. एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इस कुर्सी में इतना क्या है कि दे ट्रेड दिस ट्रस्ट एंड लव ऑफ पीपल टू दैट. एंड आज उस कुर्सी का उतना वैल्यू भी नहीं है जितना मे बी 5 साल पहले होता था, है ना, बिकॉज़ इट्स अ डेप्रिशिएटेड. बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि कब कुछ होता उस कुर्सी में, चलो हम कहते कि इन्होंने सौदा किया, बदले में इतना पावर है. ब्रेड क्रम्स भी नहीं है अगर देखें. कुछ भी नहीं है. ग्लोरीफाइड म्यूनसिपैलिटी बनाया है हमारी गवर्नमेंट को, इस रियासत को डिग्रेड किया गया है. व्हाट आर यू ट्रेडिंग दिस ट्रस्ट एंड लव फॉर? एंड क्यों लोगों का ट्रस्ट आप ख़त्म कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? आई विश कि सब ठीक हो जाए. मे बी यू शुड गो अहेड एंड खुद यहीं से जाना चाहिए कभी आपको, मे बी सीएम साहब से मिलना चाहिए. मैं मिला हूँ, बात भी की है, बहुत बार बात की है. नतीजा उसका वही निकला है जो सबके सामने है. एंड दिस इज़ नॉट अबाउट पर्सनल डिस्कशन. मुझे पर्सनल कोई डिसएग्रीमेंट है, घर की कोई लड़ाई है, तो घर में जाके बैठ के बात करनी है, जो कि किया है. दिस इज़ ऑल अबाउट people's existence. This is a public discourse. People need to know कि हो क्या रहा है, कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे सही है, और किस वजह से कमज़ोरी है, किसकी वजह से कमज़ोरी है. हर कोई सही और गलत एक ही चीज़ के साथ कंज्यूम नहीं हो सकता. So everything has to be transparent and people they deserve accountability and transparency. फारूक साहब से आपसे बात होती है इस बारे में कि नहीं? नहीं, लास्ट वर्किंग कमेटी में उनसे बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई. उनकी तबीयत, अल्लाह ताला उनको सेहत करे, उनको लंबी उम्र दे. shunned off from the party kind of. उनकी अब ज़्यादा उतनी एक्टिविटी नहीं होती. अल्लाह ताला उनको सेहत दे.
Correct. I'm really thankful to you. You gave me your time. Pleasure Thanks a being with lot. you. बहुत अच्छा Allah Hafiz, दिन sir. गुजरा आपके साथ. Thank you. Assalamu alaikum. So finally, I'm wrapping up the day. I met Aga Saab in the morning today at 10 a.m. I tagged along with him in his car. I was with him full day. I got to imagine how he works. He gave me his precious time today. And in the end, we finished here. Though usually I personally prefer walk the talk conversations, but the time was limited. The parliament session is starting in a couple of days. So he had very little time that we could do walk the talk conversations, but this is what it is, and that's it for me for now. Until next time, I'll see you again. Assalamu alaikum.